Okay, so guys, let us cover last portion of this table and formula series. So in this part of the video, that is the third part, we will be discussing the statistical tables. These statistical tables will be used throughout your CS1 and your CS2. So basically you will understand all of these tables in your CS1, and then in CS2 you will be easily able to apply them. So for CS1 students, it is very important. For CS2, till you go to CS2, you will already be knowing all these things, how to use this. So this video will be specially dedicated to CS1 students, and also those who are giving CS2 after a long time can just quickly refer it for just a quick revision. Okay guys, let us see what all is given in this part of the table and formula. So guys, the page number you can note it down. It is starting from 159 till 190. And what all is given, it is referred here. Standard normal probabilities, standard normal percentage points, T tables, chi-square percentage points, F tables, Poisson, binomial, and the last is critical values for groupings of sign tests. So this belongs to your CS2. CS2 under graduation chapter while you are checking for the deficiencies of chi-square distribution. So guys, let us start how to look at these tables and what these tables give us. So guys, first of all, you will be able to see probabilities for the standard normal distribution. We will learn how to look at these tables, what these tables give us. So let us quickly make sense out of it. So first of all, when you open a particular distribution tables, first you have to check what is given to us, whether probability greater than a particular point or whether probability lesser than a particular point. So guys, these two type of probabilities should be given to you. One is probability x less than x, one is probability x greater than x. So ये कैसे देखेंगे guys? अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट तक सारी probabilities given होगी, means probabilities up till a particular point, then it will be probability x less than x. And if it is given to us that probability from a certain point up till infinity, then it is given to us as probability x greater than x. This can be seen using either the curve or the limits of the integration. So guys, we can see limits of the integration is minus infinity to x. So what do you mean by minus infinity to x? That means all the probabilities, sum of all the probabilities up till point x. That means we have been given with the first thing, probability x less than x. So how to see this? So guys, see, on the left hand side it is given as point x, and on right hand side it is given as cumulative probability. Guys, now see, हमें pdf नहीं given, हमें cdf given है, उस point तक क्या probability है. तो अगर मैं बात करूं पॉइंट जीरो, दैट मीन्स जीरो, एग्जैक्टली जीरो पे हमारी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5. व्हाई? बिकॉज वी नो standard normal distribution is a symmetrical distribution. Again, I will not go into this we have already studied it CS1. So you can look at the curve, symmetrical distribution है, जीरो पे अगर मैं probability देखो 0.5, that means 50% of data lies below zero and 50% of the data lies after zero. So that means जीरो पे probability 0.5. अब देखो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं 0.01 पे 0.050399, अगेन दिस इज क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी गाइस. 0.01 का मतलब क्या है? इस 0.01 का मतलब क्या है? दैट मींस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 0.01 वेयर x इज फॉलोइंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज देख रहे हैं. सिमिलरली 0.05, 0.06, 0.07 and so on. It is given us till 4.4. 4.4 तक गिवन है, क्योंकि 4.4 तक जाके गाइस ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है. सी 0.099999 5 टाइम 9, सो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है. जितना हमारा वैल्यूज ऊपर जाती रहेंगी उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होती रहेंगी. तो हमने सबसे पहला टेबल्स किसका देखा गाइस? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर यहाँ पे 1.65 के बाद डायरेक्टली 1.66 गिवन है, किसी भी केस में देखो 0.01 के डिफरेंस पे गिवन है. तो अगर हमें डायरेक्टली ये निकालने को आए 1.6444, तो इस टाइप की वैल्यूज हम कैसे देखेंगे टेबल्स में? तो गाइस थोड़ा सा आप रफ एस्टिमेट ले सकते हो ऐसी वैल्यूज का. 1.644 है, तो दिस विल बी समवेयर बिटवीन 1.64 एंड 1.65. तो आप मिडल करके भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर चाहिए, दिस विल बी सॉल्व्ड यूजिंग इंटरपोलेशन.
अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हम अपनी क्लासेस में भी सीखते हैं, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर वे टू यूज इंटरपोलेशन इन योर FX 82 ES प्लस कैलकुलेटर एज वेल, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर कैलकुलेटर वीडियोस। तो हम उसके अंदर भी देख सकते हैं कि इंटरपोलेशन कैसे करना है, बट इतना आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई वैल्यू पे आपको निकालना आता है, आप डायरेक्टली 1.64 देखो, 1.65 देखो, और सम में थोड़ा सा एडजस्ट करके वैल्यू लिख सकते हो कि अगर 1.645 से पहले की वैल्यू है तो हमें मिड से नीचे जाना है, और 1.645 से ऊपर की वैल्यू है हमें मिड से ऊपर आना है। तो इस तरीके से आप रफ एस्टिमेट्स करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगेन देयर इज वन मोर टेबल फॉर standard normal distribution, but this time they are giving you percentage points instead of probabilities. They are giving you percentage points. Again, our first step whenever we open a new table, our first step will be to check the limits. Limits देखो क्या है, x to infinity, that means यहाँ पे हमें क्या values given है, probability x greater than x, उस point से बड़ी क्या probability होगी, या फिर यहाँ बोल दो percentage points, क्योंकि यहाँ पे हमें percentage में given है। पहला देखते हैं जीरो पे अगेन 50% ही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ सिमेट्रिकल है। अब जैसे जैसे हम देखो आगे बढ़ रहे हैं 0.1257, प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज क्यों हो रही है गाइस, देखो हम अब x से बड़ा देख रहे हैं, तो उससे बड़े नंबर बहुत कम रहते जाएंगे। जीरो तक अगर 50% है, जैसे जैसे मैं जीरो से आगे बढ़ूंगा, अब यहाँ पे मैं कुछ देखूंगा तो नंबर्स डेटा मेरा कम होता जाएगा, इससे आगे जाऊंगा डेटा और कम होता जाएगा, इससे आगे जाऊंगा डेटा और कम होता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे परसेंटेज पॉइंट्स कम हो रहे हैं। इज इट क्लियर हाउ टू चेक वैल्यूज फ्रॉम योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, आफ्टर दैट लेट अस कम टू द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपको एक और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने देखा स्टैंडर्ड नॉर्मल में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, दैट इज डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट ही हम चेक कर रहे थे, लेकिन आगे वाले डिस्ट्रीब्यूशंस में हम देखेंगे एक और वेरिएबल हमारे पास होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ इन दिस सेशन आई विल नॉट टेक यू थ्रू द व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हम अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस में कवर कर लेंगे। हम यहाँ पे ये देखते हैं टेबल्स देखना कैसे है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं। नाउ सपोज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज्यूम कर लो, अभी कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हमें 30% पे वैल्यू चेक करनी है। 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हमें 30% पे वैल्यू चेक करनी है। नाउ अगेन व्हाट विल बी फर्स्ट स्टेप, जो अभी अभी हमने सीखा था, सबसे पहले देखना है कि टेबल ग्रेटर देन का गिवन है या लेस देन का गिवन है। दैट मींस टेबल x ग्रेटर देन x का गिवन है या टेबल x लेस देन x का गिवन है। तो गाइस यहाँ पे भी लिमिट्स देखो, x टू इंफिनिटी। x टू इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ, हमें x पॉइंट से सारी बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए। दैट मींस दिस इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x। नाउ सपोज हमें t फॉर 30% देखना है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 देखा हमने, यहाँ पे परसेंटेज 30 है, सो इट्स आंसर विल बी 0.5686। 0.5686 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, t फॉर 30% पे 0.5686। अब आप बोलोगे ठीक है अभी तक आपने बताया ग्रेटर देन लेस देन, लेकिन अगर मान लो टेबल ग्रेटर देन का है, अगर टेबल ग्रेटर देन का है लेकिन हमें निकालने को लेस देन आया, तो क्या करेंगे, सिंपल है, हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होती है, आप डायरेक्टली क्या कर दोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x। अब ये तो हम डायरेक्टली टेबल से निकाल सकते हैं, इस तरीके से ये हम डायरेक्टली टेबल से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज ग्रेटर देन की गिवन है। तो गाइस अभी तक हमने दो चीजें सीखी, एक तो लेस देन ग्रेटर देन देखना, और स्टैंडर्ड नॉर्मल में हमारा एक ही वेरिएबल था डेटा पॉइंट, यहाँ पे हमारा डेटा पॉइंट भी है और साथ में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है। क्लियर? तो गाइस ये डेटा पॉइंट है हमारा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे हमें परसेंटेजेस गिवन है। क्लियर? ओके, लेट मी प्रोसीड। अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन आता है काइस्को डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी वही दो वैल्यूज आएंगी, एक डेटा पॉइंट और एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है गाइस, ये हमारा डेटा पॉइंट है। तो हमें परसेंटेज कहाँ पे गिवन है देख सकते हो, ये हमारा डेटा पॉइंट होगा नहीं, तो यही बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है गाइस। जहां पे हमारा x लिखा होता है वो हमारा डेटा पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखो हमें x कहीं गिवन ही नहीं था, तो ये v जो था, जो न्यू आपका पैरामीटर है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, न्यू इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, p इज योर परसेंटेज पॉइंट्स, और ये जो बाकी जो नंबर्स है वो सारे डेटा पॉइंट्स है आपके। लेकिन यहाँ पे साफ साफ हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो
ऊपर है, डेटा पॉइंट सारे हमें नीचे है। सो दीज आर माई डेटा पॉइंट्स हियर। या अब ये सारी ब्लैक वाली वैल्यूज हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी। तो हर टेबल को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो काई स्क्वायर में आप देखो, यहाँ पे ऊपर हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे हमारे डेटा पॉइंट्स है, और ये सारी हमारी क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटीज। इज इट क्लियर टू यू? अगेन 0 से x है, दैट मीन्स हमें छोटी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमारा किसका टेबल है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन x का। क्लियर? अब अगर एक हम एग्जांपल ले लें कि अगर हमें काई स्क्वायर निकालना है, काई स्क्वायर विथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट डेटा पॉइंट 1। तो सी गाइस, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डेटा पॉइंट कितना है हमारा 1, 1 डेटा पॉइंट 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आंसर इज 0.3935। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज ऑब्जर्व करनी है। ओके, लेट मी प्रोसीड। दिस इज वेरी सिंपल। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखोगे आपको अप्लाई करना बहुत इजी होगा। ये जस्ट हम एक इंट्रो ले रहे हैं कि कैसे चीजें ऑब्जर्व करनी है हमें। ओके गाइस, नेक्स्ट अगेन ये परसेंटेज पॉइंट्स का टेबल आ गया काई स्क्वायर का। अब ये x टू इंफिनिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x का टेबल है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x का टेबल। अब यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे परसेंटेज पॉइंट्स ये हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऊपर गिवन है, ये हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब ये जो सारी वैल्यूज होगी ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारी वैल्यूज गाइस, ये सारी वैल्यूज हमारी डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने क्या देखा था, स्टैंडर्ड नॉर्मल में सिर्फ डेटा पॉइंट, टी डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा पॉइंट एंड 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होगा, डेटा पॉइंट, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 चीजें होंगी। तो गाइस एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत ज्यादा परसेंटेजेस पे या फिर प्रोबेबिलिटीज पे वैल्यूज नहीं गिवन, हमें सिर्फ 4 वैल्यूज पे गिवन है, 10%, 5%, 2.5% एंड 1%। सिर्फ इन 4 परसेंटेज पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज गिवन है। देखना कैसे है, सो सी, ऊपर हमारे पास फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नीचे हमारे पास सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये सारे हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। लेकिन ये सारे डेटा पॉइंट्स सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी के लिए। क्लियर? तो अगर हमें यहाँ वैल्यू मिलती है तो आंसर 10% हो जाएगा, यहाँ वैल्यू मिलती है आंसर 5% हो जाएगा, इस टेबल में वैल्यू मिलती है तो 2.5%, और अगर इस टेबल में वैल्यू मिलती है तो 1%। सिर्फ 4 प्रोबेबिलिटीज पे ही हमें आंसर ले लेना। 4 गिवन है तो इसको रिवर्स करके 8 कर लो। 8 कैसे? क्योंकि मैंने बताया अगर लेस देन गिवन होगा तो 1 माइनस करके उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल किसका ये देख लेते हैं। टेबल ये हमें x टू इंफिनिटी अगेन, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x का गिवन। क्लियर गाइस? Okay, let us proceed. Okay, so guys, after F distribution, let us come to some discrete distribution. So out of many discrete distributions, only 2 distributions have been given us in these tables for the probabilities value. One is Poisson distribution, second is binomial distributions. So values of these 2 distributions are given. So this is probabilities for Poisson distribution. How we have to see this? So see, on the upper corner it is given as the data points x equals to 0 1 2 3. Now this cannot be decimal because we know this is a discrete distribution, so x can take only integer values, that's also positive integers. So 0 1 2 3 4 5 till 11 and so on 13 तक हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो 13 तक ही हमारे टेबल, क्योंकि उसके आगे हमारी वैल्यूज वैसे भी 0 हो जाती है। और u म्यू, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पॉइसन का पैरामीटर। हम लैम्डा पढ़ते हैं, हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, e रेज़ टू माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। बस इस लैम्डा की जगह म्यू को रिप्लेस करा देना। तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है म्यू आपको क्या गिवन है, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20। तो इस तरीके से गिवन है गाइस, x इक्वल्स टू 0 1 2 3। अब यहाँ पे भी गाइस हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन, ये भी हमें CDF ही गिवन है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखाऊं तो सी, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, समेशन ऑफ t इक्वल्स टू 0 टू x, मींस अप टिल विच पॉइंट हमें कहां तक प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो अगर मैं 0 तक देख रहा हूं तो वो क्या दे रहा है हमें, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 0। 1 तक देख रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1, दैट मींस 0 प्लस 1। 2 तक देख रहा हूं 0 1 2, ऐसे ही अगर 5 तक देख रहा हूं तो 0 1 2 3 4 5। सो गाइस अगेन दिस इज वेरी यूजफुल। जब हमें सपोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने को आया और हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5,
तो अभी इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके 0 +1 +2 +3 +4 +5। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या देखेंगे 5 पे वैल्यू डिपेंडिंग ऑन अवर लैम्डा पैरामीटर। तो लैम्डा 0.05 से शुरू होके 0.05 के गैप में कहां तक जा रहा है देख लेते हैं। ये हमारा जा रहा है पूरा 8.75 गोइंग ऑन 15, 15 के बाद भी 25, 25 तक जा रहा है गाइस हमारा ये। तो देखो 13 तक वैल्यू यहाँ पे 25 तक गिवन है, x 13 तक, डेटा पॉइंट 13 तक। अब यहाँ पे हमें 14 से 25 की भी गिवन है, लेकिन देखो 25 तक कोई वैल्यू जा ही नहीं रही। 19 तक आते आते ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी 1 बन रही है। सो सी, तो लैम्डा हम देखा हमने, लैम्डा हमारा कहां तक गिवन था गाइस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैम्डा 25 तक, डेटा की वैल्यू 25 तक, लेकिन 25 तक जाते जाते वो हमारी वैसे भी 1 हो जाती है। सो सी, यहाँ पे भी लैम्डा हमारा 25 तक ही जा रहा है। क्लियर? अब गाइस याद रखना इस टेबल में वैल्यू 1 हो रही है, वाई? क्योंकि देखो लैम्डा हमारा छोटा है और हम डेटा पॉइंट 25 देख रहे हैं, लेकिन जब हम आगे चलते गए, जब हमने देखा हमारा डेटा 25 तक जा रहा था और डेटा सॉरी लैम्डा 25 तक जा रहा था, डेटा की वैल्यू 25 पे जा रही है, तब देखो तब प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रही, तब दिस इज समथिंग अराउंड 0.55292। तो यहाँ पे भी टेबल खत्म नहीं हुआ, पॉइजन का टेबल चली जा रहा है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इतना ज्यादा आपको यूज करना भी नहीं आता, हमें मैक्सिमम अगर आएगा प्रोबेबिलिटी निकालनी तो समवेयर x लेस देन इक्वल्स टू 2, x लेस देन इक्वल्स टू 3, इतना ही निकालना आएगा। तो वही उस केस में हमें 0 +1 +2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली लैम्डा चेक करके इस टेबल्स में देख लेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैक्स वैल्यू डेटा की कहां तक गिवन है टेबल्स में। सो गाइस मैक्स वैल्यू डेटा की 37 तक गिवन है और लैम्डा की हमें 25 तक ही गिवन है। अच्छा डेटा की अभी आगे चल रही है, 49 तक आते आते यहाँ पे खत्म हो रही है गाइस। लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू 25, डेटा की मैक्सिमम वैल्यू 49। अगेन दिस इज नॉट यूजफुल, आपको जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना आएगा तो मैक्सिमम आप कौन से टेबल्स देखोगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये दिस इज द फर्स्ट पेज, ये वाला पेज देखोगे दैट इज पेज, आई विल ऑल्सो टेल यू पेज क्या है हमारा ये। ओके सो इस पेज से लेके गाइस 181 पीडीएफ का पेज है, तो इस पेज से लेके यहाँ पे हमें देखो डेटा की वैल्यू 13 तक लैम्डा जा रहा है, 0.05 से लेके 5.2 से लेके 8.75 से लेके, तो बेसिकली यही वाले जो टेबल्स हैं यही हमें यूजफुल आएंगे डिपेंडिंग ऑन लैम्डा हमें क्या गिवन होगा। मोस्टली क्वेश्चंस में लैम्डा भी 0 से 10 के बीच में ही आता है, तो ये जो फर्स्ट 3-4 पेजेस है हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, रेस्ट इतना कोई खास यूज नहीं आता। और इसमें भी हमें यूज सिर्फ तभी आएगा जब हमें सीडीएफ चाहिए होगा, जब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, मींस सपोज हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3 चाहिए होगा, तब हम अपना टेबल्स नहीं यूज करेंगे, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है e raised to power minus lambda, lambda raised to power 3 upon 3 factorial. Why I have put 3? Because our x is 3. Clear? Okay. Now proceeding to the last distribution, that is of the discrete form. Here it is, binomial distribution. Binomial distribution. तो इसमें अब क्या देखेंगे guys, you know if x is following binomial distribution then it must have two parameters n and p। जैसे हमने पॉइजन में देखा था हमारा सिर्फ एक पैरामीटर था लैम्डा, बाइनोमियल केस में गाइस हमारे दो पैरामीटर्स होंगे। सी n is given lower words and p is given right words and here are the data points। ये सारे हमारे डेटा पॉइंट्स है 0 से लेके 6 तक इस पेज पे मेंशन्ड है, और ये सारी क्या है गाइस, ये सब हमारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है कि अगर n 2 है और प्रोबेबिलिटी 0.01 है और हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 चाहिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर n हमारा 4 है, सपोज n हमारा 4 है, प्रोबेबिलिटी 0.01 है और हमें x इक्वल्स टू 2 पे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पूरी 1। तो इस तरीके से हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं। अगेन अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको क्या बोली, x इक्वल्स टू 2। सो गाइस क्या x इक्वल्स टू 2 की तुक है? नहीं। अगेन सी यहाँ पे हमारा क्यूमुलेटिव टेबल है, तो ये हमें वैल्यू भी देगा x लेस देन इक्वल्स टू 2 के। तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 2 अगर हमें निकालना है, अच्छा गाइस अगर हमें x इक्वल्स टू 2 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, x इक्वल्स टू
2k. Again, I will not suggest you to use this way. We will be directly applying binomial distribution to calculate values at a particular point. Don't need to use these cumulative tables for calculating probability at a particular point. This will only be useful when you are going to calculate probability up till a particular point, or you are calculating cumulative distribution function. So this is all about binomial distribution. Last is critical values for grouping of sign tests. Again, I will not be going in much detail for this. This will be covered under CS2 chapter 10, that is graduation. उसके अंदर हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे. तो अगेन अगर मैं सिर्फ CS2 स्पेसिफिक बात करूं टेबल्स में, जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ दिस टेबल्स एंड फॉर्मूला सीरीज है, तो उसके अंदर सिर्फ हमारा ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, दैट इज 189. रेस्ट जो सारी चीजें हम ऑलरेडी CS1 में सीख चुके होंगे फॉर CS2 स्टूडेंट्स. अगेन जो CS2 बहुत टाइम बाद अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू गाइस कैन गो थ्रू इट, बहुत आपको हेल्पफुल होगा रिवाइज करने के लिए कैसे कैसे हम टेबल्स यूज करते थे. रेस्ट इट इज दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर CS1 स्टूडेंट्स. रेस्ट बाकी सब हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है. वी आर अबाउट टू ओवर this video. Let me just quickly revise you what all we have covered in all the three parts of the videos, guys. In the first part we have discussed all the formulae that you will be going to study in your CS1, CS2, CM1, CM2. In the second part of the video we have covered all the tables that you are going to use for your CM1 subject. उसके अंदर सारा जो भी हमने कंटेंट पढ़ा, that is important for CM1 aspirants that are going to give their exam, CM1 exam in future dates. And the last part, that is the third part of the video, यहाँ हमने किसके बारे में बात करी, all the tables related to different distributions, both continuous distributions as well as discrete distributions. Discrete में हमने दो देखे, Poisson and binomial. Continuous में भी हमने बहुत सारे देखे, standard normal, T distribution, chi-square distribution and F distribution. Okay guys, so I will conclude till here. If you have any doubts related to this table and formula series, you can just mail us on the academicjunction@gmail.com, or you can just ping on the WhatsApp number of the institute. If you have any doubt, you guys can reach out to me. Okay, so that's it for today. I will be making these type of videos to help you out, and also don't forget to subscribe this channel and like this video. Okay, so that's it for today. I will again come forward with the other content.